Hey guys, welcome back to my channel. I am Mohammad Muskan. Today I am here for the Indian Uzbekistan International Medical and IT Collaboration Summit of 2026, guys. And yeah, we can see many great people who will be attending this summit today, and I think it will be a very great video if you just watch this because it will be very informative. And ये एक collaboration है इंडियन एंड उज्बेकिस्तान के बीच में, जहाँ फैकल्टी एक्सचेंज होती है, जहाँ स्टूडेंट्स के क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में बात किया जाती है, हाउ ए इंस्टीट्यूट शुड रन, हाउ ए मेडिकल स्टूडेंट शुड गेट their studies and the curriculum and all. ये होने वाला है आज का summit का main motto. Hi, now we have Dr. Ajay with us. Sir, what do you think? What is the role of advisory committee? Role of advisory committee is very much important in guiding strategy, quality, and global collaborations. As advisory board in one word, which is a direction. Advisory members, they improve the university rankings in terms of enhancing academic standards, research output, and global partnerships. As we know, the impact of country's education system, considering this collaboration, it raises the global competitiveness and attracts international students. Global collaboration is important as it connects knowledge, innovations, and opportunities. Sir, ये इंडियन और उज्बेकिस्तान का जो है कोलैबोरेशन है ना सर, हाउ विल दिस बेनिफिट स्टूडेंट्स सर? ओ यस सर्टेनली, क्योंकि जब कोलैबोरेशन हो रहा है तो कई इंस्टीट्यूशंस, जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन आपके साथ आ रहा है, आप हमारे साथ आ रहे हैं, दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। हमारे रिसोर्सेज होंगे वो शेयर्ड होंगे, हमारी लाइब्रेरी है, हमारे रिसर्चेज हैं, हमारे फैकल्टीज़ हैं, हमारे जो पेटेंट्स हैं, हमारे जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो आप कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। Okay, now we have Professor Mitra here. How do you think it is Uzbekistan and Indian collaboration, sir? How do you think it is helpful for students, sir, this collaboration? Yeah, I think many Indian students they go abroad, Yeah. so that is good for India also. Yeah, That if we develop this joint collaboration, the Indian students will get a good education and opportunity also. So that is number one. And nowadays, collaborative approach towards medicine Yes. is very important because say one institute has its one emphasis Yes. and other institute has a complementary importance, so these two can collaborate and complement each other. Yeah. Sir, can you please tell us few words about this Profi University? Profi University, I find it is a very nice university. It appears the cleanliness is really impressed me. In fact, Tashkent cleanliness is very impressive to me. And as I understand from your founder, I think they have a bigger plan, very highly aspirational plan. He was showing me. Yeah. So I think it will be very good. Academic curriculum is also very good, Yeah, whatever sir. I understood. So I think this sort of collaboration will help both the countries and both the students from both the countries. Yes. So do you wanna give any advice to students watching who wanna join Profi University? Yeah, I think Profi University is one of the universities. I visited Ukraine also. Okay. So this is a good university. Its infrastructure is quite good. Yeah. Sir, what do you think, sir? What makes an institute competitive globally, sir? आजकल ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए जो जरूरी होता है वो आपका इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है। और इंटरनेशनल रैंकिंग में जैसे मैंने बताया कि आजकल टाइम्स हायर एजुकेशन, बहुत सारी संस्थाएं ये सब रैंकिंग बताती हैं। ये रैंकिंग कैसे डिसाइड होता है, तो उसमें बेसिकली आप कैसा ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हैं, वो इन व्हाट वे वो अपने देश के काम में आ रहा है, इंटरनेशनली उसको कितना एक्सपोजर मिला है, उसका जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, वो किस एरिया में कर रहा है, उसके जो पब्लिकेशंस है, जो रिसर्च पेपर्स है, वो कितने बार रेफ़र किए गए हैं, कितने लोगों ने रेफ़र किए हैं, आपके बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में नेशनल और इंटरनेशनल परसेप्शन क्या है, आपका एलुमनाई कहाँ पे काम करता है, आपके इंडस्ट्री के साथ कितने अच्छे संबंध है, कितने सलीके से आप काम कर रहे हैं, कितने सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ आप काम कर रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ नेशनल या इंटरनेशनल आपके कितने रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ से फंडिंग आपका आ रहा है, ये सभी चीज़ों को देख के आपका इंटरनेशनल रैंकिंग होता है।
So now we have Dr. Lalit Bhushan sir. Sir, what is advisory committee in one word, sir? What do you tell? सो एडवाइजरी कमिटी इज नथिंग बट सिस्टम. एक हम सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिससे वैल्यू ऐड हो सके इन एनी यूनिवर्सिटीज एनी वर्किंग. सो दैट सिस्टम वी आर गोइंग टू क्रिएट थ्रू एडवाइजरी बोर्ड. So, sir, you know this is in collaboration Uzbekistan and India. Sir, how do you think it will impact the students and how useful it is for students? बेसिकली आई हैव लर्न दैट कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया Yeah. and whatever, and they aspire to come back to India. If there is a pathway which is created, जो कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे को भी वही लेवल का एजुकेशन या वही लेवल का सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सके जो उनको वहाँ जहाँ प्रैक्टिस करना है या जहाँ एम्प्लॉयबिलिटी वो ढूंढना चाह रहे हैं वहाँ पे उनको उस तरीके का हेल्प हो, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प. एंड दिस इज़ अ ब्रॉडर फोरम की जहाँ पे कंट्री लेवल पे ऐसा सिस्टम और पाथवे क्रिएट हो रहा है. इट इज़ लाइक अ बिग ब्रिज which is getting created, so students can easily walk along on that bridge. Now we have Professor Piyush Services. Sir, what is advisory committee in one word? Advisory committee gives the right direction and give the global practices that has been happening across the world in education. सर फ्यूचर क्या होगा सर? अब कोलैबोरेशन चल रहा है उज्बेकिस्तान और इंडिया का जो कोलैबोरेशन चल रहा है सर, व्हाट विल बी द फ्यूचर सर? फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लगता है क्योंकि मैं कल आया यहाँ पे और देखा जो उज़्बेक में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है और स्केल और स्पीड तीनों का कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छा कुछ जॉइंट कोलैबोरेशन इंडिया और उज़्बेकिस्तान में हो सकता है. Now we have Professor Vijay Khare sir. Sir, what excites you most about this collaboration sir? Like हमने देखा कि उज्बेकिस्तान और इंडियन का कोलैबोरेशन है, ये स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगा सर? आपको क्या बोलनी है आप? See, considering the present geopolitical system, पहले हमारे जो इंडियन स्टूडेंट थे उनका फर्स्ट टारगेट था यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया. नाउ दे आर शिफ्टेड. नाउ देयर टारगेट इज शिफ्टेड फ्रॉम द यूरोप, फ्रॉम एशिया, फ्रॉम सेंट्रल एशिया. सो पेरेंट्स नाउ थिंकिंग व्हाई शुड वी सेंड द स्टूडेंट इन फार डिस्टेंस. तो इससे अच्छा तो 2 घंटे का फ्लाइट है, तो ताशकंद में आएगा, बच्चा सीखेगा, थोड़ा कल्चर अडॉप्ट करेगा. एंड टेक्नोलॉजी इज देम अभी पहले जैसा नहीं रहा. तो विद इन अ मिनट आप करेंट्स को बात देख सकते, कर सकते हो. तो मीडिया इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल, टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल. दैट गैप इज ब्रिजिंग, सो दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी. एंड सर व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स सर? एक एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए आपके तरफ से. स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट दे हैव टू कम विद द विजन व्हाई दे वांट टू हैव इट sustainable, for this university, and how they can come for their future. So yeah, now we have Dr. Banu Prakash sir. I know many of you might be knowing sir, we all know sir how much tough it is to manage FMG, how to crack FMG, and ये भी जानना होता है कि स्टूडेंट्स को कि कब से हम FMG की प्रिपरेशन स्टार्ट करें. प्लीज गाइड सर. See, generally FMG का एग्जाम का टफनेस आप देखें तो it is not the same FMG what we had in 2012 versus the FMG what we have in 2026. FMG का पैटर्न बदलता जा रहा है, FMG का टफनेस बदलता जा रहा है. सो आजकल के FMG एग्जाम में मेनली क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट एंड इंटीग्रेटेड बेसिस. until or unless student have a knowledge related to that particular topic, वो क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है. इसलिए मेनी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे रहते हैं, मैं काफ़ी लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, सर ऐसा इधर से फाइनल ईयर कर दूंगा, मैं डिग्री लेके मैं इंडिया में जाऊंगा, कोचिंग सेंटर में जाऊंगा, कोचिंग सेंटर में 4.5 months 5 months का कोचिंग लेके मैं पास हो जाऊंगा. वो अभी नामुमकिन नहीं है. वैसा सोच के बहुत ही सारे लोग 2 साल 3 साल 4 साल भी स्पेंड करें. मतलब देख लीजिए 6 साल का MBBS, उसके बाद 3-4 साल का FMG नहीं हुआ तो 10 साल में आपका एज ही क्या होता है. Yes. तो इसलिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में यू आर नॉट इवन सपोज टू वेस्ट इवन 1 year. दैट इज द रीजन आप फर्स्ट ईयर से जो FMG का तैयारी करना है कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए. फर्स्ट ईयर से हर एक टॉपिक FMG के लिए पढ़ना चाहिए. लास्ट ईयर आप सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है, पढ़ाई के लिए नहीं रखना है. Yeah, now we have Archana Mohan ma'am. Ma'am, what is your responsibilities as being a committee ma'am? My responsibility will be primarily bringing some innovative ideas, some strategic ideas which will help Profi University gain heights. In primarily, I will think for health science point of view, but it will be like that I should work for betterment of the programs that Profi University is delivering to its students and earn more heights.
Ma'am, what will be the future of the Indian and Uzbekistan? There is a collaboration on. What do you think is like future? Future कैसा होने वाला है बच्चों का? And how students will get benefit of this collaboration especially? This collaboration will take both the universities in benefit. I'm for sure that it will take both its students, its faculty, its management, its ideas, its culture, everything will be collaborated. And now we have Dr. Yugandhara Ramesh ma'am. हम देख सकते हैं आप एक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हो मैम. हाउ इट इज़ हेल्पफुल मैम? आप इस यूनिवर्सिटी को कैसा हेल्प कर सकते हैं? कैसा इसके एजुकेशनल सिस्टम आप बिल्ड करते हो? देखो हम एज एन एडवाइज़र उनका जो मेन एम होता है कि यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल सिस्टम इम्प्रूव करेंगे. करिकुलम हम रिवाइज कर सकते हैं. देन असेसमेंट मेथड्स भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं. And developing the new curriculum, that is one important part because world is changing, diseases are changing, and as per the need we have to change the curriculum also. So we can help into all the aspects of the education. जैसा इंडिया में हो रहा है वैसा उज़्बेकिस्तान में भी चलने का आप देखभाल करते हो ना? Definitely हम उसमें भी हम contribute करते हैं. या मैम हम देख सकते हैं कि इंडियन उज़्बेकिस्तान अब इन कोलैबोरेशन ना, क्या आप बोल सकते हो आप फ्यूचर कैसा रहेगा इन कोलैबोरेशन विद द, हाउ इट इज़ यूजफुल टू द स्टूडेंट्स मैम? कैसे यूजफुल होगा ये कोलैबोरेशन से? स्टूडेंट को एक कोलैबोरेशन बहुत ही यूजफुल रहेगा क्योंकि दोनों कंट्री में कुछ ना कुछ तो अलग हो रहा है. अगर हम एक साथ आते हैं तो स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू द बोथ वेज एंड आइडियाज़ भी हम उसमें से निकाल सकते हैं और उससे डेफिनेटली स्टूडेंट के फायदे का होगा. मैम गिव वन एडवाइस टू द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग एंड हु वांट टू कम टू प्रॉफी यूनिवर्सिटी. प्रॉफी यूनिवर्सिटी के बारे में बता दो स्टूडेंट्स को कि कैसा है. आई फील प्रॉफी यूनिवर्सिटी जो है इट हैज़ वेरी मच ओपन माइंड, ओपन आर्म्स एंड उसके फाउंडर जो है ही इज़ विलिंग टू डू द बेस्ट टू गिव द यूनिवर्सिटी एंड द स्टूडेंट. एंड Tashkent city तो it's wonderful. People are very cooperative and they are very humble. Food is also good. Environment is good. So I think अच्छी opportunity है ये भी. Yeah, now we have Praveen Bhai Goli sir here. Sir, आपका रोल क्या है सर being a committee member? एज अ कमेटी मेंबर हमारा रोल है कि ये यूनिवर्सिटी ग्लोबली, इस यूनिवर्सिटी का नाम कैसा हो, स्टूडेंट को नॉलेज कैसे मिले, क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले, और एज अ क्वालिटी एजुकेशन ग्लोबली स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने के लिए आए और वो स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी अपना बेस नॉलेज दे पाए. और उसके लिए यूनिवर्सिटी को क्या चेंजेस करना है, क्या करना है, वो हमारा रोल. यस सर, अगर हम देख सकते हैं कोलैबोरेशन है सर इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में, आप कैसा इसे देख रहे हैं सर इन फ्यूचर? हाउ आर यू सीइंग दिस कोलैबोरेशन इन फ्यूचर लाइक इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान के बारे? एक्चुअली मेडिकल एजुकेशन जो इंडिया में है, वो इंडिया में मेडिकल एजुकेशन जनरली ज़्यादातर वो क्लिनिकली प्रैक्टिस ज़्यादा होती है. एमबीबीएस जो फैकल्टीज़ है इंडिया में, एमबीबीएस इन कैंपस जो हॉस्पिटल होता है वो बहुत लार्ज हॉस्पिटल होता है, और जो फैकल्टी होते हैं वो फैकल्टी भी बहुत नॉलेजेबल फैकल्टी है इंडिया में. तो इंडिया के जो स्टूडेंट है उसको एमबीबीएस करने के लिए वहाँ पे सीटें जो है वो मेरिट बेस पे पड़ जाती है. उसके बाद स्टूडेंट को अदर ऑप्शन फाइल करना होता है. yes, तो ये दोनों कोलैबोरेशन से ऐसा हो पाए कि जो इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन जो दी जा रही है, जो पढ़ाई जा रही है, जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट फ्लो जो स्टूडेंट को मिलता है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता है, वो भी यहाँ पे अप्लाई हो. और यहाँ पे अप्लाई होने से स्टूडेंट जो यहाँ पे इंडिया में उसको जो क्वालिटी मिलता है वो क्वालिटी सेंटर्स में यहाँ मिल पाए, और यहाँ वो स्टूडेंट पढ़ने के बाद कहीं भी अदर कंट्री में भी जाए तो वो स्टूडेंट को और सोसाइटी को अच्छी तरह अपनी सेवाएं दे पाए. सो नाउ वी हैव डॉक्टर रेणु तोमर मैम विद अस. मैम आपको क्या लगता है व्हाट इज दिस एडवाइजरी कमेटी, हाउ इट एक्चुअली हेल्प्स द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ? मैम एडवाइजरी कमेटी मेंबर्स जो होते हैं दे कम विद देयर स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टाइज. यस And with their expertise and specialization, they will be able to add on to the policies, they will be able to add on to the academic, and they would also be able to provide the mobility by linking the universities together and adding to the research. So that has to be the role of the advisory committee. what is a message you want to give to the young minds
and beautiful minds watching, ma'am. Young minds, beautiful minds, and they are the creative people and they are very sharp. Yeah, ma'am. So that is the advantage which the youngsters have. The disadvantage is the patience. Be patient, keep on working, seeing the result, improving upon them. That is the basic skill as to master any kind of an art. Even the theatre, the acting, the swimming, cycling, all those skills, all those work required to improve oneself. So, reskill, upskill, add yourself, and always be patient, persistent, and happy in life. So now we have Dr. Narendra Singh Goyal sir. Sir, क्या आप बता सकते हैं सर मेडिकल टूरिज्म के बारे में एंड ऑल? हम ये सोचते हैं कि अभी अभी आया हुआ एक फिनोमिना है, लेकिन मेडिकल टूरिज्म कई सालों से चल रहा है। मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी चीज़ मेडिकल टूरिज्म में ये हो रही है कि बाहर के अनप्रिविलेज्ड पेशेंट्स, वो सारे के सारे मरीज जो कि आज की डेट में अच्छा इलाज नहीं ढूंढ पाते, जो कि जिनके पास पैसों की कमी है, जो कई कई डॉलर्स नहीं खर्च कर सकते अपनी सर्जरीज के ऊपर, वो इंडिया जैसी कंट्री में आकर और यहाँ पर इंडियन डॉक्टर्स, मैं आपको बताऊँ, इंडियन डॉक्टर्स बहुत प्रोफिशिएंट हैं, बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ सर्जरीज कर चुके हैं, तो वो उनकी हेल्प ले लेते हैं बहुत इजीली और अपनी सर्जरी करा देते हैं। और दोनों ही गवर्नमेंट, यानी कि इस कंट्री की और जिस कंट्री से वो आ रहे हैं, दोनों ही गवर्नमेंट इसमें बहुत सपोर्ट करती है। तो मेडिकल टूरिज्म अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है उन सभी अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए भी, जो कि किसी और जगह नहीं जा सकते, और उसके अलावा उनको अपनी कंट्री के अंदर इलाज जो कि प्रॉपर मुहैया नहीं हो सकता, तो वो यहाँ पर, स्पेशली मैं इंडिया की बात करूंगा बिकॉज आई एम इंडियन, तो वो इंडिया में आकर और इंडिया में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। Okay, sir. What is your vision in this collaboration for like the next upcoming 5 years? Well, talking about Profi University, let me tell you one thing, that first of all, I'm very impressed, especially from the infrastructure as well as management. I'm very thankful to Mr. Sandeep and team for just not only inviting us, but also getting the vision that we can make a broader tie-up for the future. Like we have great surgeons with us. The names are renowned names like Dr. Kamal Kishore Bishnoi, Yes, sir. Dr. Bambora, Dr. Gaurav Jain. Under their guidance, they can actually watch how they are doing the surgeries and they can learn how to do surgeries. Yes, And that is the major part what I really expect from Profi's side, so that they can actually motivate students to become part of it in future. So now we have Dr. Hitesh Dubaria sir. सर आपको क्या लगता है हाउ इज दिस कोलैबोरेशन विल हेल्प स्टूडेंट्स? सर मेडिकल टूरिज्म में क्या रोल प्ले करेगा ये? मेडिकल टूरिज्म में एक्चुअली ये रोल करेगा क्योंकि इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म है वो वर्ल्ड का बेस्ट मेडिकल स्टडीज़ माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो वहाँ का जो फैकल्टीज़ है, जो स्टूडेंट्स को यहाँ के लिए जो अभी MOU साइन हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम में अच्छी गुड क्वालिटी एजुकेशंस मिलेगी, अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड होगी वहाँ से आपका, और स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स रहेगा क्योंकि यहाँ जो हमारे इंडिया में जो क्लिनिकल मटेरियल्स वगैरह सब है वो उसका भी बेनिफिट्स मिलेगा। सर आपको क्या कैसी लगती है सर प्रोफी यूनिवर्सिटी एंड हाउ इज दिस कोलैबोरेशन विल हेल्प इन फ्यूचर नेक्स्ट 5 इयर्स में? आप इस यूनिवर्सिटी या इस यूनिवर्सिटी की वजह से जो भी कोलैबोरेशन है क्या कैसा इवॉल्व होगा इन 5 इयर्स? प्रॉफी यूनिवर्सिटीज़ अदर यूनिवर्सिटी के मुकाबले एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है। यहाँ पे जो स्टडीज़ वगैरह सब हमने जो देखा, जो स्टडीज़ वगैरह सब होता है उसका भी गुड क्वालिटीज़ वगैरह सब है, और इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो कोलैबोरेशन किया है, तो नेक्स्ट 5 ईयर में स्टूडेंट्स के लिए खास करके जो इंडिया से यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है, कोई ना कोई वजह से उनको अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको उनका बेनिफिट और एडवांटेज अच्छे से मिलेगा। और जो अदर यूनिवर्सिटी के साथ जो कोलैबोरेशन किया है, तो वहाँ के जो भी नॉलेज पर्सन है, वहाँ का जो नॉलेज है वो सब स्टूडेंट के साथ सारे शेयर होगा, और उसमें स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, ना केवल इंडिया के स्टूडेंट को, यहाँ के स्टूडेंट को तो भी जो क्लिनिकल मटेरियल्स वगैरह सब हमारे इंडिया में है, जो वहाँ पर नॉलेज है, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट करेगा। Yes, sir. Sir, how do you think this medical education is evolving globally? ग्लोबली वैसे पूरा मेडिकल एजुकेशन ग्लोबली होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक जगह पे जो अदर रिसर्च हो रहे हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, AI के ऊपर इतना रिसर्च हो रहा है,
तो ग्लोबली जो सारे केस स्टडीज़ वगैरह सब रह गए, उसमें जो भी नए नए इनोवेटिव हो गए, तो अगर ग्लोबली हो गए तो उसमें सबको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें पूरा एक प्लेटफॉर्म का पूरा वर्ल्ड का मेडिकल को टूरिज्म सिस्टम आ जाएगा। तो सारे वर्ल्ड में जो भी केस टेकिंग हो गए, केस स्टडीज़ हो गए, वो सारे एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएंगे। और खास करके प्रॉफी यूनिवर्सिटी में अभी ये लोग जो मतलब प्रॉफी यूनिवर्सिटी के ऑनर्स वगैरह सब जो है, वो जो ये अपने सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अदर डिफरेंट कंट्री के यूनिवर्सिटी के साथ जो MOU साइन कर रहे हैं, जो नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, जो फैकल्टी शेयरिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चला रहा है, तो उनको उनके स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। और ख़ास करके ग्लोबल में जो भी जगह पे, चाहे US ले लो, UK ले लो, इंडिया ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, व्हाटएवर, सब कंट्री में जो भी ग्लोबलाइजेशन में इनोवेशन होता है, नए रिसर्च होते हैं, वो सारे बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलता है। So yeah, now we have Dr. Sunny Devas Ayala, sir. Sir, what are the NMC guidelines and what a college should follow the rules of NMC guidelines? Please explain. So basically, all foreign universities outside India, they have to comply with the NMC guidelines. So if NMC has released 2021 FNGL guidelines, right? So according to that, all the colleges have to be taught in English. First, the curriculum has to be taught in English, and the curriculum has to comply with the NMC standards. And all the universities which are outside India have to have the essentiality certificate. Exactly. So that NMC has approved that particular university, so that Indian students of anybody can go and study there. So yeah, Profi University में जो selective यूनिवर्सिटी है, उनके रिप्रेजेंटेटिव मयंक सर, उनके थोड़े एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं इस समिट के बारे में। सर बोलो। Hello, my name is Mayank. I am representative from Selective University. Today we are here at Profi University. आज हमारा एक इंडिया उज़्बेकिस्तान का जो है समिट हुआ है, जो कि बेस था हमारा मेडिकल और IT कोलैबोरेशंस के लिए, उज़्बेकिस्तान के और एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए। और ये प्रोग्राम जो है बेस था, जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल करने आते हैं इंडिया से यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉफी यूनिवर्सिटी उनके लिए इंडियन फैकल्टीज़ अरेंज करने वाली है। IT का डेवलपमेंट और ज़्यादा यूनिवर्सिटी में होगा तो नॉन मेडिकल कोर्सेज़ के लिए भी बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। तो दिस वाज द ऑल एजेंडा रिगार्डिंग द इवेंट ऑफ टुडे एट प्रॉफी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा एक एडवाइजरी कमेटी बनी है जो कि उज़्बेकिस्तान के मेडिकल एंड IT एजुकेशन को डेवलप करेगी। एंड देयर वाज आल्सो MOU साइनिंग बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स जो कि आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने अपना MOU साइन किया है विद प्रॉफी यूनिवर्सिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड फ्यूचर फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स कमिंग हियर फॉर स्टडी। यस, I think it's great, sir. Thank you. थैंक यू सो मच। तो या प्रॉफी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट यूनिवर्सिटी जो है, इसके रिप्रेजेंटेटिव आशीष सर से जान लेते हैं कि क्या ये समिट किसके बारे में है और क्या है। हाय सर। हेलो मुस्कान, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। सर बेसिकली समिट क्यों है सर? हम देख सकते हैं एक इंडियन उज़्बेकिस्तान इंटरनेशनल मेडिकल एंड IT समिट है सर, सी ये बेसिकली हमारे इंडियन बच्चों पे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमने ये समिट ऑर्गेनाइज कराया है। हमारा ये समिट था, बेसिकली इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। 2 पार्ट ऐसे कि हमने एक एडवाइजरी मेंबर्स को हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, और दूसरा हमने एक MOU सेरेमनी रखा है। अगर हम एडवाइजरी मेंबर्स की बात करें तो एडवाइजरी मेंबर्स हमारे यूनिवर्सिटीज़ में आज जो यहाँ पे विजिट किया है, सब किसी न किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में या किसी बड़े मेडिकल एसोसिएशन में एज अ वाइस चांसलर कहीं ना कहीं सब ऑलरेडी उन्होंने अपना ड्यूटी की हुई है, वर्किंग हैं कुछ लोग करेंटली। तो उनका एक एक्सपीरियंस है। इंडिया में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे आप देख सकते हो संतोष मेडिकल कॉलेज से लेके अपने यूनिवर्सिटी भी है हमारा, प्रिंस कॉलेज उदयपुर हो गया, कृष्णा कराड हो गया, दत्ता मेघे अपना जो नागपुर में है, अगर आप देखोगे तो ना, इससे मतलब ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 6-7 मेडिकल कॉलेजेस के डीन और चांसलर को लाने की कोशिश की जो यहाँ पे आए हैं। और इसके साथ साथ में हमने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो कि छत्तीसगढ़ में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, पुणे यूनिवर्सिटी दैट इज़ इन महाराष्ट्र। तो ये सारे जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी वाइस चांसलर्स या डॉक्टर्स हैं, उनको लाने का सबसे मेन रीज़न क्या था कि जो बच्चे इंडिया से उज़्बेकिस्तान आ रहे हैं, उज़्बेकिस्तान आने के बाद वो यहाँ पे आते हैं अपनी मेडिकल स्टडीज़ के लिए। बेसिकली आप देखोगे तो बहुत सारे ऑलमोस्ट 22,000 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर बच्चों की हमने ये कंप्लेंट सुनी है, या फिर हमें ऐसा सुनने को आता है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज,
यहाँ पे जो Language barrier. लैंग्वेज बैरियर है, जो Indian टीचर्स हैं, faculty का भी टीचर्स और फैकल्टीज जो हैं, अब हमें हमें बचपन से आदत होती है कि हम इंडियन टीचर्स से पढ़े होते हैं, सडनली हमारे टीचर्स चेंज हो जाते हैं, तो उस चक्कर में बच्चे हो सकता है उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो ये एक छोटी से पहले है हमारी कि हम इंडियन टीचर्स को, इंडियन बिग नेम्स को जो कि अपने इंडस्ट्री में ऑलरेडी अच्छा नाम रखते हैं, उनको यहाँ लाएं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको यहाँ की फैकल्टी को और ट्रेंड कराएं और बेटर कराएं, लैंग्वेज की जो बाउंडेशन सारी हैं उसको हटाएं, इंडियन फैकल्टीज़ का सपोर्ट दें हमारे बच्चों को जो कि फॉरेन कंट्रीज, सॉरी इंडिया से यहाँ उज्बेकिस्तान में आके अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली एडवाइजरी का हमारा था। एमओयू से रिलेटेड हमारा ये था कि हम कुछ मेडिकल कॉलेज और कुछ ऐसे, जैसे कि आपने देखा गुरु घासीदास यूनिवर्सिटीज़ में 1 मिलियन बुक्स का हमने एक्सेस दिया अपने बच्चों को। ये बच्चों को क्या है कि ऑनलाइन लाइब्रेरी के लिए आप उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि बच्चे कहीं से भी उसका एक्सेस ले सकते हैं। उनको ऐसा नहीं कि उनको कॉलेज में ही बैठना है या लाइब्रेरी में ही बैठना है, वो कहीं से भी बैठे बैठे उसका एक्सेस लेके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे आए हैं, उस मेडिकल कॉलेज का फ़ायदा ये मिलेगा बच्चे को कि जब वो स्टडी के ड्यूरेशन में जो 2 महीने की छुट्टी में अपने घर जाते हैं, तो उस ड्यूरेशन में वो सारे मेडिकल कॉलेजेस में जाके वहाँ के लोकल टीचर्स के साथ, लोकल डॉक्टर्स के साथ पेशेंट का ऑब्जर्वेशन जो रहता है, इंटर्नशिप नहीं कह सकते, इंटर्नशिप तो लास्ट ईयर में करते हैं, बट हाँ एग्जैक्टली जो क्लिनिकल एक्सपोजर बच्चे को चाहिए होता है वो यहाँ पे उनको हम प्रोवाइड करा सकते थे। एक छोटी से पहले उज्बेकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को और बेटर बनाने की, और ये स्पेशली जो पहल की गई है वो प्रोफी यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई है। प्रोफी यूनिवर्सिटी जो कि मेन लोकेटेड है ताशकंद शहर के अंदर में, और ये इतना ही ईजी है जितना दिल्ली से पूना जाना, 2.5 घंटे का ट्रेवल है। एग्जैक्टली सर। अगर हम इस समिट की समरी बात किया जाए तो देयर आर मेनी एडवाइजरी कमिटीज हु आर अपॉइंटेड टू हैव द सेम करिकुलम इवन इन इंडिया, इवन इन उज्बेकिस्तान। मतलब आप इंडिया जैसा ही पढ़ाई सम करिकुलम फॉलो करते हो बट इन उज्बेकिस्तान, डू यू गेट मी? एंड यह प्रोफी यूनिवर्सिटी की फीस भी बहुत कम है इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू द ऑल द प्राइवेट कॉलेजेस। एंड हमने देखा कि कितने ग्रेट लोग, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बाल प्रकाश, डॉक्टर खलील, रेनू मैम and all, there are all like great persons who gave you advices and all. So yeah, that's it for the summit, guys. This summit is for like also IT, not only medicals, and also non-medical courses are also available here.